Good morning students. Today we are going to start the new topic from the geometry, that is geometric construction. This topic is very important for 10th standard. From this chapter the question will become for 4 marks. Okay, so we'll start with the first practice set, that is practice set 4.1, question number 1. So here you can see two triangles are given. First triangle ABC is similar to triangle LMN. In triangle ABC, values of three sides are given. AB is 5.5, BC is 6 and AC is 4.5. Construct the triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is 5/4. ओके, तो अभी हमारे पास तुम यहाँ देख सकते हैं AB, BC, AC मतलब ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स गिवन है. यस और नो? ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स गिवन है और हमको एक रेशियो दिया है BC अपॉन MN. कितना रेशियो दिया है? 5/4. और हमको ये दोनों ट्राइंगल क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है. तो कैसा स्टार्ट करें हम लोग? सबसे पहले हमने सिमिलैरिटी टॉपिक में तुमने सबने एक प्रॉपर्टी पढ़े कि जब भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर रहेंगे, लाइक ट्राइंगल ABC इफ सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, तो जब भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो हमने एक रेशियो पढ़ा है कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहते हैं? प्रोपोर्शन में. प्रोपोर्शन मीन्स जैसा अभी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN के, तो AB का रेशियो LM के रेशियो के इक्वल रहेगा. मीन्स AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN. ये रेशियो हमने पढ़े है ना. सो विल राइट हियर AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN. ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए और इसका रीजन क्या देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. क्यों लिया हमने ये? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है. When two triangles are similar, then their sides are in proportion. ठीक है. अब प्रोपोर्शन के बाद हमको प्रोपोर्शन का वैल्यू दिया, रेशियो कितना दिया है? 5/4. तो तीनों रेशियो 5/4 के इक्वल रहेंगे. तो विल राइट हियर AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4. अब हम क्या करेंगे? ये तीनों रेशियो 5/4 के इक्वल आ गया. Now we have given AB value, BC and AC. These three values are given. We'll substitute the values here. AB is given 5.5, so we'll substitute here 5.5. Yes or no? What we have done? Upon LM is equal to, what is the value of BC is given? 6. We'll write here 6 upon MN is equal to, what is the value of AC is given? 4.5 upon LN is equal to 5/4. Now we'll separate this each and every ratio with 5/4. All these ratios equal to 5/4. So we'll separate it. First we'll write 5.5 upon LM is equal to 5/4. ये फर्स्ट सेक्शन हो गया. सिमिलरली सेकंड वाले को कंपेयर करो, 6 अपॉन MN is equal to 5/4. ओके. एंड सिमिलरली थर्ड वन 4.5 अपॉन LN is equal to 5/4. पहले हम लोग ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. We'll take cross multiplication here. This 4 will go there. So 5.5 into 4 is equal to, okay, 5 into LM. अब हमको LM find out करना है. This 5 will go to the division. 5.5 into 4 upon 5 is equal to LM. Now we'll divide it. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5. 1 decimal के बाद point A, 1 decimal के बाद point A. So what are the left terms? 1.1 into 4 is equal to LM. 1.4 into 1.1 into 4 will give you 4.4 is equal to LM. तो अभी हमको LM का वैल्यू मिल गया. What we have got? LM is 4.4. So first ratio we have got LM equal to 4.4. Same way we'll calculate the ratio of MN and similarly we'll calculate the ratio of LN. Now we'll see for the next. Okay. Now here 6 upon MN is equal to 5/4. Again we'll take a cross multiplication. We'll write here 6 into 4 is equal to 5 into MN. Then 6 4s are 24 is equal to 5 into MN. फिर 5 will go to the division. 24 upon 5 is equal to MN. Okay. 5 ones are 5. 5 के टेबल में 24 आता है क्या? नहीं. So इससे स्मॉलर क्या आएगा? 5 4s are 20. कितना लेफ्ट हो गया? 4. पॉइंट ले लो 0. 5 8s are 40. MN का वैल्यू कितना मिला? 4.8. ओके. एंड फाइनली नेक्स्ट which value is given? 4.5 upon ln equal to 5/4.
We'll write here 4.5 upon ln is equal to 5 upon 4. Again we'll take cross multiplication. 4.5 into 4 is equal to 5 into ln. Then this 5 will go to the division. 4.5 into 4 upon 5 is equal to ln. 5 1 जा 5. 5 के टेबल में 45 आता है. रीड एज 45. तो 5 के टेबल में 45 कितने नंबर पे आता है? 9 जा. 5 9 जा 45. दैट इज 0.9. So 0.9 into 4 is equal to ln. 9 4 जा 36. So ln will be 3.6. Okay. Now we have got these three values. Understood? Now we'll construct the triangle after this. Now we have got the values of triangle ABC already there. AB is 5.5, BC is 6 and AC is 4.5. Now we have to construct this triangle. So how will we construct? First of all we have to see which side is greater from this. 5.5, 6 and 4.5. Which one is greater? 6 is greater. So BC is greater. जो भी greatest length रहेंगी इसको पहले हम लोग बनाएंगे. सबसे पहले greatest length क्या है? BC equal to 6 centimeter. So first we'll take 6 centimeter from your scale. तो स्केल से हम लोग 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. अब ये 6 सेंटीमीटर हम स्केल पे चेक करेंगे. सो इट विल बी फ्रॉम 0 to 6. इधर आ जाएगा. चेक लो ये 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया. 6 सेंटीमीटर लिए बात. ओके. इसका नाम देंगे BC. कितना है? BC बराबर. अब BC के बाद हमारे पास कितना है? AB 5.5. अब ये 5.5 ड्रॉ करने के लिए विल यूज राउंडर. अभी यूजिंग राउंडर विल ड्रॉ द 5.5. सो फ्रॉम राउंडर विल टेक अ 5.5 डिस्टेंस टू द फ्रॉम द स्केल. अभी स्केल में तुम देखो 0 1 2 3 4 5 और ये 5 और 6 के बीच में अगर तुम देखेंगे यू विल सी द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट इज 0.5. तो 5 और 6 के बीच में अगर स्मॉलेस्ट जो लेंथ है, स्मॉलेस्ट जो लाइन है, वो लाइन से हम लोग 5.5 को ड्रॉ करेंगे. तो वहाँ से लेके यहाँ तक 0 तक हम लोग का एक वैल्यू रहेगा इसको बोलते 5.5. बी पे रखेंगे और हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे. व्हाट विल ड्रॉ? आर्क. सेम वे AC. AC कितना है? 4.5. सो विल टेक 4.5 फ्रॉम द स्केल टू द राउंडर. देन विल पुट द राउंडर ऑन C एंड विल क्रॉस इट. ठीक है. दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज C. तो वो हमारा C मिलेगा और ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे. विल ज्वाइन दिस टू लेंथ. ठीक है. विल ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ B and with C. Then we'll get the triangle ABC. Okay. देखो इधर हमने किस तरह से ड्रॉ किया. तो ये पॉइंट C मिल गया. Okay. Now we'll form the triangle ABC. Okay. Sorry, ये BC it is there already. We have to consider this as A. Okay. So we got the triangle ABC. So BC is given 6 centimeter. We have written here 6 centimeter. Then what is the value of AB? AB is 5.5. So we'll write here 5.5 centimeter. What is the value of AC? 4.5. We have drawn 4.5 here. So we have got the triangle ABC. So this is your construction of triangle ABC. Same way we'll draw the triangle LMN. अब हमने LMN के values निकाले थे. First LM is 4.4. Okay. MN is 4.8. LN is 3.6. These three lengths are given. From these three lengths, which one is greater? MN is greater 4.8. So first of all, we'll draw MN. तो अभी हम MN जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें स्केल से 4.8 का लेंथ ड्रॉ करेंगे. अभी हम लोग देखेंगे 4.8. 4.8 कहाँ पड़ेगा? अब तुम यहाँ देख सकते हो मैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. यू कैन सी हियर. दिस इज योर 4.8. ये 4.8 मैंने ले लिया. ठीक है. ये रेशियो का नाम है MN. वी हैव ड्रॉन MN. विल राइट हियर 4.8. ओके. अब 4.8 लिए बाद इसका काम कंप्लीट हो गया. अब हमें क्या लेना है? 4.4. तो अब हम लोग फिर से राउंडर यूज़ करेंगे. राउंडर से हम लोग 4.4 का डिस्टेंस लेंगे. 4.4. ओके. विल पुट इट ऑन M एंड विल ड्रॉ वन आर्क. ओके. सेम वे अभी दूसरा कौन सा रेशियो दिया? 3.6. अब 3.6 हम फिर से स्केल पे लेंगे. ये 3.5 है, यहाँ 6 आएगा. ये 3.6 आ गया. N पे रखेंगे और फिर से दूसरा आर्क बनेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या होंगे? इंटरसेक्ट होंगे. इंटरसेक्ट करे बाद जब भी आर्क जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट से हम लोग दोनों भी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे. लाइक पॉइंट M को ज्वाइंट कर लेंगे
और उसके बाद हम लोग पॉइंट एन को ज्वाइन कर लेंगे. सो लाइकवाइज विल गेट द ट्राइंगल LMN. अब ये MN है. अब यार नेम कौन सा देना है, तो ये दोनों साइड जो हमने इधर ड्रॉ करे, इधर 4.4 इधर 3.6, दोनों में कॉमन लेंथ क्या रहा L, तो बच्चा क्या MN है गया, तो इधर लेंगे L. तो दिस गॉट द ट्राइंगल LMN. ओके, तो सेम वे वी हैव गॉट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. फर्स्ट ट्राइंगल वी हैव गॉट ABC and second triangle we have drawn LMN. So these two triangles are similar. अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो how will we check? So we can check it using D protector. ठीक है, from D protector you can see the angles. अभी ये जो एंगल C का मैं इधर एंगल अगर चेक करूँगा तो सपोज यहाँ तुम देख सकते हैं कि it is on 60 degree. Yes or no? Same way if you will observe this triangle and you will get a 60 degree. Yes or no? Now you can see here we are getting 60 degree. Yes or no? We are getting 60 degree. So both angle have same measure, means both the triangles has similar triangle. This is also 60 degree and this got also 60 degree. So this complete your first question. Okay, that is question number 1 from practice set 4.1. Okay, thank you so much.